Hello friends, this is the sixth part of the chapter electrochemistry. In this video, we are discussing the qualitative part of electrolysis. हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स, लेट मी गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम विक्रांत कुमार है। आई एम एन एजुकेशन कंसल्टेंट एंड केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। मैंने अपनी बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी बॉम्बे से की। आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन मैंने सुपर 30 से की थी एंड माय ऑल इंडिया रैंक इन आईआईटी जेईई वाज 869। In the last lecture, we had seen the concentration cell, which was the last lecture based on galvanic cell. In today's lecture, we are starting the electrolytic cell, and specifically today we are going to discuss only the qualitative part of this section. So we are entering into the part B. If you remember, part A was about totally galvanic cell that was finished in 5 lectures. This electrolytic cell will just take 2 lectures. So now today's lecture I have told you that we are going to discuss only the qualitative part. So basically what was the electrolytic cell? If you remember, first lecture में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन के टाइम पे that in galvanic cell we are using a spontaneous redox reaction and we are converting its chemical energy into electrical energy. But electrolytic cell is consuming the electrical energy in order to cause the occurrence of a non-spontaneous redox reaction. So the same sentence is written here, as it is dealing with non-spontaneous redox reaction, that's why it is also called non-spontaneous cell. Now an electrolytic cell consumes external energy from an external source, and specifically I need to write here external electrical energy from an external source, using it to cause a non-spontaneous redox reaction which will have obviously delta G greater than 0 at constant temperature and pressure to occur. So इसी टाइप के सेल की बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और फिर आगे जाकर हम लोग इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं। सो इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस electrolytic cell, it can have just one container only and having an electrolyte, and it will have 2 electrodes. One will be cathode obviously, another will be called anode, and it will be connected this time to a battery because we need to consume external electrical energy, and for that we are using this battery as a source of electrical energy. So according to the polarity, this time if you see, cathode this time is negative electrode. In case of galvanic cell it was called positive electrode. So that is the difference you need to remember always. This time anode is the positive electrode, but what is same in both the cells like galvanic cell and electrolytic cell is that anode will still deal with the oxidation reaction, oxidation half reaction, and cathode will still deal with the reduction half reaction. So that is going to occur normal cases में if you are having a just a molten electrolyte and if you are having inert electrodes, तो definitely cation of the electrolyte will be attracted by cathode and it will undergo reduction. Anion of the electrolyte will be attracted by anode and it will undergo oxidation. That is the simple type of function of this electrolytic cell, but it is not that much simple only. You can have a complicated case also, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियसली. सो एक एक चीज देख लेते हैं. पहले तो हम लोगों ने जो बात की कैथोड एनोड की, उसके बारे में देख लेते हैं. इफ यू आर हैविंग इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इसमें कैथोड का मतलब दिस टाइम वी आर हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रोड, and remember this polarity, it is just opposite to the polarity in galvanic cell, and this is going to deal with still reduction half reaction. When we are talking about anode, this time it is positive electrode having positive polarity, and but still it will be dealing with oxidation half रिएक्शन. नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के क्लास का मेन पर्पस यही होने वाला है जो मैं अभी बताने वाला हूं कि यू आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस जिनमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या बनने वाले हैं वो डिसाइड करना. पहले हम लोग कुछ एग्जांपल से सीखेंगे एंड देन विल जनरलाइज इट कि जब जब आपके पास एक कोई नॉर्मल केस आ जाए तो कैसे डील करना है, हाउ टू गेट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड.
यही आपका आज का टॉपिक होगा। कुछ और भी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते हुए डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मेनली आज के क्लास में हम लोग डिसाइड करने वाले हैं कि व्हाट आर गोइंग टू बी द प्रोडक्ट एट कैथोड एंड एनोड व्हेन यू आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग सम इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके वेरियस केसेस को आज हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या होगा, दैट विल द लास्ट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, छोटा है ऑब्वियसली, उसमें हम लोग इसी में क्वांटिटेटिव मैनर में एनालिसिस करेंगे दैट व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज यू आर अप्लाइंग और व्हाट करंट यू आर अप्लाइंग एंड व्हाट आर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स formed at cathode and anode. That will be the next topic जिसको मैं बोलूँगा quantitative analysis. So today we are going to deal with only qualitative analysis. तो अभी क्या करते हैं, we'll start with some of the examples कि different cases में हम लोग जब electrolysis करते हैं different substances का, तो what are going to be the product, and then we are going to generalize it. So let's go to some examples of electrolysis. Let's start with a very simple example that if you are having molten or fused NaCl, so that means इसको लिक्विफाई कर दिया और फिर जाके इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, बिकॉज सॉलिड NaCl इज नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू हैव मोल्टेन और फ्यूज, बोथ आर सेम वर्ड. इट मीन्स यू आर हैविंग NaCl इन द लिक्विड स्टेट. इसको मेल्ट कर दिया और उसके बाद हम लोग इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सॉलिड NaCl, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो आइदर वी नीड टू मेक इट सॉल्यूशन और वी नीड टू मेल्ट इट. So this time we are melting it, there is no water. So molten or fused means there is no water, there is just liquid phase NaCl. So you are having Na plus and you are having Cl minus. These are the two ions. Now naturally Na is already in its +1 oxidation state, which is its highest oxidation state. Definitely इसका oxidation तो अब आगे नहीं होने वाला है, तो इसके पास एक ही रास्ता है, and that is to undergo reduction. Similarly, if you are having Cl minus, Cl is already in -1 oxidation state, which is its minimum oxidation state. It is just having one option, that is to undergo oxidation. So यहाँ पर क्या होगा, if you are having this type of case, Na plus which is cation is undergoing reduction and Cl minus which is anion is undergoing oxidation. Now ये phenomenon जो है, this is not spontaneous. आपके पास NaCl अगर रखा हुआ, even if you are melting it, it is not going to give you Na and Cl2 gas spontaneously. So for that we are going to apply electrical energy. So that for that we are going to perform electrolysis, and that's why इलेक्ट्रोलिसिस को, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हम लोगों ने नॉन स्पॉन्टेनियस सेल बोला था. तो दिस प्रोसेस नॉट स्पॉन्टेनियस, यू आर अप्लाइंग और यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू परफॉर्म दिस रिएक्शन. सो व्हेन वी आर सेइंग व्हाट विल हैपन एट कैथोड, तो कैथोड पे अभी भी रिडक्शन होने वाला है, एंड दैट प्रोसेस इज गोइंग टू बी Na plus plus इलेक्ट्रॉन गिविंग Na. दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. एनोड पे क्या होने वाला है, तो एनोड पे यू विल बी हैविंग Cl माइनस का ऑक्सीडेशन. अगेन दोनों तरीके से लिख सकते हैं. यू कैन राइट Cl माइनस गिविंग हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. सो ओवरऑल रिएक्शन यू कैन से Na प्लस प्लस Cl माइनस गिविंग Na प्लस हाफ Cl2. So these are the products for the electrolysis of molten NaCl or fused NaCl. Now this is the case where there is no competition. You are having just one cation, one anion. There is no water or there is no other type of ions which are competing with NaCl. So this is a very simple case. So molten part में आ जाए कोई एक cation एक anion है, simply cation is undergoing reduction, anion is undergoing oxidation. That's a simple part. बट आगे जाकर हम लोग देखेंगे यू कैन हैव कॉम्प्लिकेटेड केसेज ऑल्सो वेयर देर विल बी कॉम्पिटिशन. सो उसकी बात भी आगे करेंगे. पहले एक दो केस ऐसे ले लेते हैं जिसमें हम लोग सिंपली मोल्टेन की बात करेंगे. सो लेट्स गो टू अनदर एग्जाम्पल. So in the second example we are seeing electrolysis of molten or fused again CuSO4. So again you are having two ions, cation is Cu2 plus and anion is SO4 2 minus. Now again cation is going to undergo reduction at cathode. So what will happen, Cu2 plus plus 2 electron is going to give you Cu, and what will be happening at anode, anode will have oxidation half reaction. So इसका oxidation again ध्यान से देखिए, कॉपर ऑलरेडी अपने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उससे ऊपर नहीं जाता, ये रिडक्शन में जा रहा है एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म Cu. नाउ सल्फेट में इफ यू सी सल्फर इज ऑलरेडी इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होता,
But even if we are saying at anode sulfate ion is undergoing oxidation, what does it mean? देखते हैं जरा बैलेंस रिएक्शन कैसा आता है. 2SO4 2 minus is giving you S2O8 2 minus plus 2 electron. Now when I say this is undergoing transformation from sulfate to S2O8 2 minus, which atom is changing its oxidation state? Sulfur is having plus 6 oxidation state. Here also sulfur is having plus 6 oxidation state. Here also, if you remember, ऑक्सीडेशन स्टेट का पहला लेक्चर जो हमारा था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इसको अच्छे से देख लीजिएगा पुराना जाके. दिस वाज वन ऑफ द स्पेशल एग्जांपल इन विच इफ यू आर कंसिडरिंग ऑल द ऑक्सीजन एटम्स टू बी इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आने लगेगा वो +6 से ज़्यादा आने लगेगा, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली, because you have taken the wrong assumption that all the oxygen atoms are in -2 oxidation state. Actually there are two oxygen which are in -1 oxidation state, and that's why sulfur is still in +6 oxidation state, but there are two oxygen atoms which are in -1 oxidation state. तो हम लोग जब बोल रहे हैं कि sulfate is changing in this S2O8 2 minus, sulfur is not getting oxidized, but there are two oxygen atoms out of two ions which are undergoing oxidation to go from -2 to -1 oxidation state, and that's why as a result 2 electrons are released. So if you see structure भी मैं बना ही देता हूँ यहाँ पे. S2O8 2 minus का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है. So these are the two oxygen atoms which are in -1 and -1 oxidation state. Sulfur is still in +6, sulfur is still in +6. So ये ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो अपना ऑक्सीडेशन कर रहे हैं. सो नाउ दीज आर द प्रोडक्ट्स. सो ओवरऑल रिएक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं दैट Cu2 plus 2 sulfate, because we need to equate the electron again. So that is giving you Cu plus S2O8 2 minus एज अ प्रोडक्ट, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है. सो दैट दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन CuSO4. अब जो ये दो एग्जांपल हम लोगों ने देखे ना, मोल्टेन था, देयर वाज नो कंफ्यूजन एट ऑल दैट cation is going to undergo reduction half reaction, anion is undergoing oxidation half reaction. That is one part. लेकिन अब आते हैं जरा सा एक्वस वाले केस में. नॉर्मली जो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इफ यू आर हैविंग NaCl, you will be dissolving it in water and you are making it its aqueous solution, and then you will perform electrolysis. So what will happen if you are taking aqueous solution of different substances? वहाँ से कहानी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होनी स्टार्ट होती है, बट हम लोग उसको इतने ईजी तरीके से आइडेंटिफाई करके समझेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो लेट्स गो टू अनदर थर्ड एग्जाम्पल इन विच वी आर गोइंग टू हैव एक्वस NaCl, जिसकी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं. सो व्हेन वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, व्हाट विल हैपन? नाउ देयर इज अ कॉम्पिटिशन. व्हाई देयर इज अ कॉम्पिटिशन? बिकॉज जैसे मैंने एक्वस लिखा, देयर इज H2O, एंड यहाँ NaCl में वी आर हैविंग Na प्लस एंड Cl minus. Now what will happen? This H2O is going to compete. Whether it will win or not, that we are going to see. But H2O is going to compete at cathode as well as at anode. So that we need to take care. So देखते हैं कि करके क्या होता है. So cathode की बात करते हैं. कैथोड पे किसका कॉम्पिटिशन? ऑब्वियसली अनायन इज नॉट द कॉम्पिटिटर एट कैथोड. ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता. Cl ऑलरेडी -1 अपने लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है. सो दिस इज नॉट इन कॉम्पिटिशन एट ऑल. बट ऑब्वियसली यहाँ पे देर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन Na प्लस एंड H2O के बीच का कॉम्पिटिशन है. मैं एंड की जगह वर्सेज लिख सकता हूँ बिकॉज देर इज अ कॉम्पिटिशन. सो नाउ अब कौन विनर होगा, इसके लिए अब हम लोगों को जरा सा देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं. तो अभी जो सबसे सिंपल फैक्टर वो ये है कि वी नीड टू सी द SRP वैल्यूज. SRP वैल्यू जिनका ज़्यादा होता है उनके रिडक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है ना. तो ये हम लोगों ने सीखा है, बट दैट इज अंडर स्टैंडर्ड स्टेट. बट काफ़ी सारे कंक्लूजन सिर्फ SRP एंड SOP से ही निकाले जा सकते हैं. जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा फैक्टर मैटर करेगा वो मैं आपको बता दूंगा आगे. So right now we are going to deal at cathode, so we need to see the SRP value. So देखते हैं Na plus इलेक्ट्रॉन गिविंग Na
अब ये जो है इसका SRP वैल्यू कितना है, तो इसका SRP वैल्यू होता है -2.71 वोल्ट। नाउ व्हेन यू आर हैविंग H2O, तो H2O के रिडक्शन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस प्लस 2OH माइनस, इसके लिए जो E0 होता है -0.828 वोल्ट, ऑलमोस्ट -0.83 होता है। अब ये चीज़ आप ध्यान में भी रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार काम आने वाला है। वाटर का कभी कभी ऑक्सीडेशन, कभी कभी रिडक्शन ऐसा पॉसिबल हो सकता है, यहाँ होगा या नहीं वो देखेंगे, बट इन जनरल यू नीड टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ हाफ रिएक्शंस क्योंकि ये कई बार यूज होने वाला है। सो अब इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं। ऑब्वियसली व्हेन वी कंपेयर SRP वैल्यूज इट विल बी कंपेरिजन विद साइन। सो विद साइन दिस इज अ हायर वैल्यू and this is a lower value. So when we are saying this is higher and when we are saying this is lower, that means वाटर के रिडक्शन की टेंडेंसी Na प्लस के रिडक्शन की टेंडेंसी से ज्यादा है, and that's why we are saying when there is a competition of Na plus and H2O, H2O is going to be the winner which is going to give you the product, and that's why at cathode when we say H2O undergoes reduction to give H2 gas as product. ना यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं जो मैटर कर सकते हैं जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन सिंपली अगर किसी ने कहा व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एट कैथोड, इस सिंपल लाइन के लिए हम लोग बोलेंगे H2 इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट एट कैथोड। ठीक है, तो ये बात हो गई। जहां पर एक्स्ट्रा फैक्टर आएंगे ऑब्वियसली मैं आपको बताने वाला हूं कि वहां पर हम लोगों को और क्या देखना है, but right now with the simple language that on electrolysis of aqueous NaCl what is going to be the product at cathode, we'll simply report H2 gas. That's one part. Now let's talk about anode. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आने वाला है। सो एनोड पे अगर हम लोग बात करें, देर इज अ कॉम्पिटिशन in which anion is obviously involved, Cl minus versus again H2O is involved here. Now when we are talking about these two, let's first see the SOP values this time, and then we'll see what extra factor may cause alteration of the order. So let's see that. So if we are talking about Cl minus का oxidation, so the balanced reaction will be 2Cl minus giving Cl2 gas plus 2 electron. अब इसका अगर SOP देखेंगे, क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा है, दैट्स व्हाई इट इज SOP, तो दिस इज हैविंग SOP वैल्यू -1.36 वोल्ट अराउंड, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इट इज 2H2O गिविंग O2. ऑक्सीडेशन का मतलब H ऑलरेडी +1 में है, O जो है -2 में, दैट इज गोइंग इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट इज ऑक्सीडेशन. सो अगर एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन. अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस टाइप ऑफ हाफ रिएक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों याद रखना है. सो इसके लिए जो E0 वैल्यू आता है दैट इज -1.23 वोल्ट. नाउ क्या क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे. सो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हम लोग वैल्यूज देखें तो दिस इज लोअर वैल्यू, this is higher value, and that suggests water should undergo oxidation, not Cl minus. So what should be the product as per SOP values? SOP values are suggesting that water is going to undergo oxidation to give you O2 gas and not Cl2 gas will be obtained at anode. But what will happen? देर आर अदर फैक्टर, जैसा मैंने बताया था. तो यहाँ पर अदर फैक्टर क्या है कि अगर थर्मोडायनेमिकली स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से पता चलता है कि O2 शुड बी द प्रोडक्ट, बट वी आर नॉट गोइंग टू हैव ऑलवेज द स्टैंडर्ड कंडीशन. दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ पहले भी ऐसी बातें हो चुकी होंगी कि काइनेटिक्स ऑल्सो
इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर रिएक्शंस। हम लोग सिर्फ ये बात नहीं करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हम लोग स्पीड ऑफ द रिएक्शन की भी बात करते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव अ मॉडरेट काइनेटिक्स यू नीड टू हैव मॉडरेट स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन दैट फैक्टर इज कंसिडर्ड फॉर एवरी रिएक्शन you need to apply some extra voltage for electrolysis, and that extra applied voltage is called over voltage or over potential। तो ना जब हम लोग ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल को इंक्लूड करते हुए देखते हैं, देन Cl माइनस बिकम्स द विनर इन दिस केस। अगेन हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर सिंपली ये सेंटेंस पूछा जाए तो इस सेंटेंस में और क्या क्या ट्विस्ट हो सकते हैं, दोज आर गोइंग टू बी द स्पेशल केसेस। बट व्हेन सिंपली इट इज आस्किंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl, we'll be saying that when electrolysis of aqueous NaCl is performed, then we don't get O2, we are going to get Cl2 as the product, which is not as per the SOP values, but it is by including the concept of over voltage। सो व्हेन एनोड की बात करें तो 2-3 पॉइंट्स हम लोगों के समझ में आना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट ओवर वोल्टेज। सो व्हाट इज ओवर वोल्टेज, पहले ये देख लेते हैं। ओवर वोल्टेज भी बोलते हैं, ओवर पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। सो व्हाट इज दिस थिंग, इट इज द एक्स्ट्रा पोटेंशियल required practically considering the kinetics of reaction। And then in this case what we can say that when you are doing the electrolysis of aqueous NaCl, then in this case at anode, due to greater over voltage or potential associated with conversion of या oxidation of H2O to O2, then the conversion of Cl minus to Cl2, we get Cl2 as product at anode। Now, so क्या ये बात यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती थी? हाउ डू वी नो? सो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, जिसको मैं समराइज करने वाला हूँ ऑब्वियसली, कि कहाँ पे कंसिडर करना है, कहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। बट एक लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू देख सकते हैं हम लोग। इफ़ यू सी दिस इज having not that much less difference, there is a significant difference in these two values. Minus 2.71 is very far from minus 0.828. But if you see these two values, these are very close, minus 1.36 and minus 1.23. There is just difference of 0.13 only, and that's why this is getting overcome by this over voltage, which is an extra factor. So that is the second factor which will also matter in addition to SRP और SOP values. So यहाँ से हम लोगों को पता चला कि अगर हम लोगों को क्लोराइड आयन की बात करें, even if it is having lower SOP due to its lower over voltage, it is giving you the preferred product at anode during the electrolysis of aqueous NaCl. So I am just concluding the result. When you are doing the electrolysis of aqueous NaCl, then what will be the product? Product at cathode will be H2 gas, which is coming from water, and what will be the product at anode? Product at anode will be Cl2 gas, which is coming from Cl minus ions. So this is the conclusion of this example, which is electrolysis of aqueous NaCl. Now आगे जाकर हम लोग बढ़ते हैं और दूसरा एक और केस देखते हैं। When we are doing electrolysis of aqueous CuSO4, then what will happen? So when we are doing the electrolysis of aqueous CuSO4, again let's have the comparison and let's have the competition at cathode as well as anode. So when you are having
cathode you are having cation Cu2 plus versus H2O again. Now again see the first we'll see SRP values, then we'll see whether the over voltage or over potential will matter or not. That we'll see again. So for Cu2 plus, if you write the reduction half reaction, it is having SRP value 0.34 volt. And when we are talking about H2O, already we are using this reaction time and again. So when we are talking about reduction of H2O, again दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं. That depends on the medium. It will be having different SRP values. So this time when we are balancing it with OH minus, what we are getting E naught equals minus 0.828 होता है. Approximately I am writing 83. So now again there is a large gap and the values suggest that it is having higher SRP. So this is higher SRP and this is lower SRP, and difference is significant. So we don't give any other factor more importance, and we are saying that this time we are going to get copper as the product at cathode. So cathode पे क्या होगा? Cu is deposited at cathode. Now जब हम लोग एनोड की बात करें, so एनोड पे there is a competition of sulfate ion versus H2O again. इस बार SOP की बात करेंगे. एनोड पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए SOP की बात करेंगे. सो सल्फेट के ऑक्सीडेशन की बात हम लोगों ने पहले भी की थी मोल्टेन स्टेट में, बट इस बार एक्वस स्टेट है. तो सल्फेट +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग, सॉरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो सल्फेट गिविंग H2OH2 माइनस +2 इलेक्ट्रॉन. और इसके लिए ई नॉट का जो वैल्यू होता है दैट इज -2.05 वोल्ट. इस रेंज में जाता है. एंड जब हम लोग वाटर के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, पहले भी हम लोगों ने किया है, लास्ट केस में ही किया था. सो दैट इज दिस मच. सो व्हेन वी आर राइटिंग ई नॉट ऑफ दिस थिंग, वी आर राइटिंग SOP. ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के सामने का ई नॉट इज SOP. दिस नंबर इज, पहले भी देखा था, इट वॉज -1.23 वोल्ट. अगेन दिस इज हैविंग हायर SOP. सो दिस इज हायर SOP. एंड अगेन वो डिफरेंस जो है वो 0 पॉइंट समथिंग 1 या 2 का नहीं है, ये 1 के अराउंड डिफरेंस आ रहा है. सो इट इज अराउंड 0.82 जैसा डिफरेंस दिख रहा है. एंड दैट difference is not overcome by even by the over voltage. So over voltage is not an important factor here. So this is lower SOP. So as per the SOP we can say O2 is going to be the product is liberated or evolved, ये सब लैंग्वेजेस यूज होते हैं, और प्रोड्यूस्ड एट एनोड. सो दिस टाइम, लास्ट टाइम इफ यू सी, जो हम लोगों ने पिछला एग्जांपल देखा था, आई विल जस्ट पुट बोथ द एग्जांपल्स हियर. सो आपके सामने एक्वस केस के दो एक्वस फेज में इलेक्ट्रोलिसिस के दो केसेज हैं. एक केस में जहां कैटायन Na+ था, वाटर वॉज द विनर एट कैथोड टू गिव H2 एज द प्रोडक्ट. ठीक है, बट यहां पर कैटायन अगर Cu2+ है, दिस टाइम कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड. सो मेटल आयन इज द विनर एंड मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड. सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अनायन, इफ यू आर हैविंग Cl-, however SOP value was not supporting it to be the winner, but due to over voltage, an extra factor, Cl- was the winner and it was giving you Cl2 gas at anode as the product. But when you are talking about sulfate versus H2O, this time SOP is so low for sulfate, oxidation of sulfate, that we are saying O2 will be liberated or evolved at anode and water is the winner at anode. तो यहाँ से कहानी थोड़ी सी मिलती जुलती समझ में आ रही है कि there are some cations which will be winner when they are competing with water. There are some cations which will be loser when they are competing with water. Similar is the case for anions also. So if you are having chloride as anion and water, in this competition chloride is winning. When you are having sulfate competing with water, water is winning. So we should have that list कि कौन वाटर से जीतने वाला है, कौन वाटर से हारने वाला है.
उसको देखेंगे, लेकिन बेस्ड ऑन दीज लर्निंग्स इफ आई आस्क यू, यू आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous Na2SO4, let's see that Na plus and sulfate. So that means let's see one more example, उसके बाद हम लोग इसको conclude भी करेंगे. So if you are having electrolysis of aqueous Na2SO4, what are going to be the product? Let's see that example. When we are talking about electrolysis of aqueous Na2SO4, obviously cathode पे like cation is having competition with water, but already we have seen कि यहाँ पर अगर Na plus versus H2 होता है, what is going to be the winner? This time water is going to be the winner, and that's why what we say that cathode will give you H2 gas. ओके, सो दैट सिंपल. और रिएक्शन हम लोगों ने लिखा हुआ है पहले भी, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 गैस प्लस 2OH माइनस. ये बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग है, मतलब OH माइनस के साथ अगर बैलेंसिंग करें तो. अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में करते हैं वी कैन सिंपली राइट 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 गैस. तो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. H प्लस का इन्फॉर्मेशन है, OH माइनस का इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन राइट reactions, but both the reactions are having different E naught. ये भी ध्यान में रखना है. it was 0, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम लोगों ने देखा था, it was 0. this time it is E naught is minus 0.828 होता है, 83 के अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं. but in both the cases Na plus is not going to be the winner in competition with H2O, so H2 gas is going to be the product. when we are talking about anode, anode पे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है. anion is going to be competing with water, तो सल्फेट वर्सेज H2O में हम लोगों ने देखा था H2O was the winner here also. So in this case what we are saying, O2 gas is the product. Now if you see it overall, so when you are doing the electrolysis of aqueous Na2SO4, ना तो इसका कैटायन इलेक्ट्रोलिसिस में गया है, ना तो इसका अनायन इलेक्ट्रोलिसिस में गया है. सो इट कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द रोल ऑफ Na2SO4 हियर. सिंपली वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते थे इस केस में. इफ यू वांट product from water only, H2 is product from water only at cathode, O2 is product from water only at anode. So if you want products from water itself, why you are using aqueous Na2SO4? Simply do the electrolysis of water. But then what we say, water is not a very good conductor. Pure water is not a very good conductor of electrolysis, and that's why ions from this salt are providing medium for electrical conduction. So हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं role of Na2SO4 is to provide ions which help in conduction of electricity. So उनका इलेक्ट्रोलिसिस के रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, कोई पार्ट नहीं आ रहा है, ना तो Na प्लस इन्वॉल्व है, ना ही सल्फेट इन्वॉल्व है, बट दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू आयंस विच आर गोइंग टू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये जो 5 एग्जाम्पल देखें, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको, आपके पास कुछ केसेज हैं जहाँ कैटायन इज द विनर, Cu2 प्लस वॉज विनर इन कॉम्पिटिशन विद H2O. देर आर कैटायंस विच आर लूजर इन कॉम्पिटिशन विद H2O लाइक Na प्लस. Similarly in other case there are anions like Cl minus is anion which was winner in competition with H2O when we are considering the over voltage obviously. So Cl minus was winner in competition with H2O, but sulfate is the loser in competition with H2O. So we need to have that type of list. And what is the overall principle of deciding how to get the product at cathode and anode, that we are going to see in the next section, which will be called the section of preferential discharge or selective discharge. मतलब कौन से प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन डिफरेंट केसेज, उसको हम लोग समराइज करने वाले हैं. सो लेट्स गो टू दैट सेक्शन. So when we are talking about preferential or selective discharge, that means there is a competition between some substances at a particular electrode. One of them are going to be the winner. So what this principle is saying, it is saying that selectively किसका electrolysis पहले होगा, उसके लिए there is a term called discharge potential which includes
oxidation or reduction potential and over voltage also. So when we are talking about discharge का मतलब है द सब्सटेंस इज अंडरगोइंग इलेक्ट्रोलिसिस. सो अर्लियर बहुत ही सिंपल सा होता था. कैटायन वॉज गिविंग यू मेटल, अनायन वॉज गिविंग यू नॉन मेटल और गैस. सो दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड डिस्चार्ज बिकॉज दैट सब्सटेंस वॉज लूजिंग इट्स चार्ज. सो वेन वी आर सेइंग दिस पार्ट, सो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट अ गिवन इलेक्ट्रोड the substance with lower discharge potential will preferably be electrolyzed and the substance with next lower discharge potential will start undergoing electrolysis only if the substance with lower discharge potential is completely consumed. ठीक है, सिंपल सा वर्ड में मतलब बता देता हूं. तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं एक नए टर्म की, डिस्चार्ज पोटेंशियल. सो डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो अगर हम लोग कैथोड की बात कर रहे हैं, इट इज माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होने का मतलब है कि अब उतना ज़्यादा पोटेंशियल आपको, जितना ज़्यादा निगेटिव है उतना ज़्यादा आपको एक्सटर्नल पोटेंशियल देना पड़ेगा. सिमिलरली अगर हम लोग एनोड की बात करते हैं तो वहाँ पर माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना आपको देना पड़ेगा, तब जाके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी. बट उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, इंक्लूडिंग द काइनेटिक्स यू नीड टू कंसिडर ओवर वोल्टेज ऑल्सो. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्चार्ज पोटेंशियल, it is minus reduction potential plus over voltage at cathode and it is minus oxidation potential plus over voltage at anode. So the substance with lower discharge potential उसकी requirement कम है तो वो पहले इलेक्ट्रोलिसिस के लिए चला जाएगा. So यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, at cathode we can say discharge potential का मतलब क्या है, तो discharge potential will be equal to minus of reduction potential plus over voltage. ठीक है, और फिर एट एनोड अगर हम लोग बात करें, तो चलिए पहले कैथोड की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद एनोड की बात करेंगे. तो एट कैथोड अगर हम लोग बात करें तो इसका ऑर्डर सो इन दैट केस यू आर हैविंग, कुछ चीज़ों का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है वाटर से. सो वाटर से ज़्यादा किन का है, तो लाइक Na प्लस, K प्लस, Li प्लस, फर्स्ट ए वाले सारे ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट Mg2 प्लस, Ca2 प्लस एंड देन एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये सब जो हैं इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है जब हम लोग कैथोड की बात कर रहे हैं. तो एंड बट देयर आर सम कैटायंस जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, लाइक Cu2 प्लस, Cu प्लस, Hg2 प्लस, Ag प्लस, Hg2 2 प्लस भी कह सकते हैं, Au3 प्लस,
दीज आर द सब्सटेंसेज जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल इससे कम है. सो इफ यू आर हैविंग दीज टू चॉइसेस, तो यहां से मेटल कहां से मिलेगा, तो दीज आर गोइंग टू बी द विनर फर्स्ट, देन वाटर एंड देन दीज थिंग्स. सो जब भी आपका कंपटीशन यहां के किसी कैटायन और इनके बीच में होगा, दीज आर गोइंग टू बी द विनर. अगर इसका कंपटीशन इनसे होगा तो वाटर इज गोइंग टू बी द विनर. सो अगर हम लोग बात करें, देन these are winner to give you product, to give product. बट अगर हम लोग बात करें इनके किसी कंपटीशन की या फिर इनमें से कंपटीशन की, सो वाटर इज गोइंग टू बी द विनर टू गिव प्रोडक्ट. सो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा. इधर कौन से हैं, एस ब्लॉक पूरा, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 का कैटायन जो है वो याद रखिएगा. दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट कैटायंस जिनके साथ वाटर का कंपटीशन आपको दिया जा सकता है. सो वहाँ पर हमेशा देखना है दिस ग्रुप इज द विनर देन दिस ग्रुप. तो मैंने यहाँ पर लोअर लिखा है, ये ध्यान में रखिएगा. जो लोअर है उसका पहले इलेक्ट्रोलिसिस होगा, बाद में हायर वाले का होगा. तो ईज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगर यहाँ पूछ दिया जाए, दिस इज, तो यहाँ पे Na प्लस या K प्लस एट्सेट्रा वाला जो ग्रुप है उससे बेटर H2O का होगा टू गिव, जब हम लोग कैथोड पे बात कर रहे हैं तो H2 गैस, एंड फिर इसके बाद इधर Cu2 प्लस या Ag प्लस एट्सेट्रा. तो यहाँ से जो मेटल मिलने वाले हैं उन वो पहले मेटल देंगे, फिर वाटर H2 देगा, और फिर अगर वाटर और इनका कंपटीशन है तो वाटर H2 देने वाला है. अगर वाटर ना हो तो फिर इनके मेटल्स मिलने वाले हैं. ठीक है. सो दैट इज अबाउट डिस्चार्ज पोटेंशियल एट कैथोड. तो ये हमने बात की कैथोड की. अब बात करते हैं एनोड की. सो एनोड की जब हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली एनोड पे क्या होगा कि हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो लेंगे, फिर से ओवर वोल्टेज की बात आएगी. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एट एनोड, तो एनोड पे डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब आप समझ लीजिए कि दैट इज माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ओवर वोल्टेज अगेन. सो यहां पर क्या ऑर्डर है, यहां पर फिर से वाटर की बात होगी. वाटर के सामने एक कंपटीशन आएगा. सो वाटर के सामने जो कंपटीशन है, एक ग्रुप जो प्रोडक्ट नहीं देने वाला वाटर के सामने, वो ग्रुप क्या है, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, फ्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड, कार्बोनेट आयन, नॉट क्लोराइड, थायोसल्फेट भी इधर ही रखते हैं, सल्फाइट भी इधर ही रखते हैं. दीज आर सम मेन एग्जांपल्स जो प्रोडक्ट नहीं देने वाले हैं इफ वाटर इज अवेलेबल. सो वाटर इज गोइंग टू गिव यू O2 गैस एट एनोड. जब भी हम लोग एनोड की बात करेंगे तो ये सब वाटर के सामने प्रोडक्ट नहीं देंगे. वाटर इज गोइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट दैट इज O2. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम आयंस लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और देर इज वन आयन CH3CO माइनस आयन, एसीटेट आयन भी इधर ही आ जाता है. तो दीज आर द आयंस विच आर गोइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट्स. सो जब भी आपके पास ये कंपटीशन होगा, दिस वर्सेस दिस इज गोइंग टू बी द विनर, दिस वर्सेस दिस, दीज आर गोइंग टू बी द विनर. सो ये हमेशा ध्यान में रखना है. तो ईज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये ऑब्वियसली एट एनोड की बात कर रहे हैं, पिछला हम लोगों ने कैथोड की बात की थी. तो लाइक सल्फेट या नाइट्रेट, ये वाला जो ग्रुप है एटसेट्रा, इनसे बेटर है H2O की इलेक्ट्रोलिसिस, और इनसे बेटर है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एटसेट्रा इनकी इलेक्ट्रोलिसिस. सो दैट वी नीड टू रिमेंबर. सो इफ यू आर हैविंग दिस होल लिस्ट, जितने क्वालिटेटिव नेचर के क्वेश्चन है वो तो ऐसे ही हैंडल हो जाएंगे, बट क्वांटिटेटिव नेचर के क्वेश्चन में भी यू नीड टू हैव दैट टाइप ऑफ डिसीजन. तभी तो बताएंगे प्रोडक्ट क्या बना और कितना बनेगा. तो कितना बनेगा विल बी द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, लेकिन क्या बनेगा वो पहले पता होना चाहिए, देन वी कैन डिसाइड कि कितना बनेगा. सो दैट्स व्हाई दिस कंप्लीट लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हेनेवर यू विल बी टॉकिंग अबाउट कैथोड, these ions
are going to preferably give you metal, then water is going to give you H2, and then these ions are going to give you metal. ठीक है, तो दिस इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. हमेशा ईज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद रखेगा. Cu2 plus Ag plus Hg2 plus Hg22 plus Au3 plus, these are going to give you preferably products, then water is going to give you H2 gas, and then these ions which are in S block or in group 13 वाला मेटल Al3 plus जैसे है, तो ये बाद में प्रोडक्ट दे सकता है. वैसे ही अनायन की बात करें तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन या एसीटेट आयन का प्रेफरेबली इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा. देन वाटर इज गोइंग टू गिव यू, ये क्या देता है, O2 गैस देता है ऑब्वियसली यहाँ पे. एंड देन उसके बाद सल्फेट, नाइट्रेट, इनकी बात की जा सकती है. तो जब भी आपके पास केस आएगा वाटर के अंदर कुछ एक कोई सॉल्ट रहेगा, उसका एक कैटायन एक एनायन रहेगा, तो वाटर के साथ ही कॉम्पिटिशन मोस्टली दिया जाता है. अदर कॉम्पिटिशन्स अगर क्रिएट किए जाए कि वाटर के अंदर K+ भी, KCl भी है, NaCl भी है, ऑब्वियसली वाटर इज गोइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट. बट अगर वाटर के पास Cu2 प्लस एंड Ag+ है, देन यू नीड टू टेक अ डिसीजन. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे. ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा सिर्फ कि वाटर के कंपैरिजन में कौन से सब्सटेंसेज हैं जो प्रेफरेबली इलेक्ट्रोलिसिस में जाने वाले हैं और कौन से हैं जो प्रेफरेबली इलेक्ट्रोलिसिस में नहीं जाने वाले हैं. सो दैट वाज वन इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं. तो लेट्स मूव टू सम क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोग ये तो देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, साथ ही साथ एक और एनालिसिस कर सकते हैं. और वो एनालिसिस क्या होगी, वो एनालिसिस ये होगी कि इफ़ यू आर हैविंग सम एक्वस सॉल्यूशन तो उसका pH भी चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस. तो हम लोग ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि ड्यूरिंग दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑन pH. अभी के लिए सिर्फ इतना बात करेंगे कि pH बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, और इट विल रिमेन सेम. जब हम लोग क्वांटिटेटिव में जाएंगे वी कैन हैव अनदर डिसीजन कि इसका pH कितने से चेंज होगा, एग्जैक्टली pH कितना हो जाएगा आफ्टर अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो ये बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. लेकिन आज जो क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं उसमें एक क्वालिटेटिव एनालिसिस pH के बारे में भी करेंगे कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस pH बढ़ने वाला है या कम होने वाला है. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आई जस्ट रीड इट आउट. फाइंड आउट प्रोडक्ट्स ऑन कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग. ऑल्सो प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑन pH इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस. सो पॉज करके पहले ये पोर्शन लिख दीजिए, देन आई विल प्रेजेंट द होल टेबल. देयर आर 10 क्वेश्चंस एक्चुअली. सो पहले पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. नाउ आई विल गिव यू दोज 10 क्वेश्चंस. आपके सामने ये स्क्रीन पे 10 क्वेश्चन है. इनमें से फर्स्ट कॉलम में मैंने सब्सटेंसेस की बात की है जिनकी इलेक्ट्रोलिसिस होने वाली है. एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट प्रोडक्ट एट कैथोड, प्रोडक्ट एट एनोड, इफेक्ट ऑन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑन द pH. सो स्क्रीन को पॉज करके पहले इस टेबल को नोट कर लीजिए एंड देन write down all the answers as per your understanding. Then we'll see the solution of these questions. Hopefully आप लोगों ने पॉज करके नोट करके और फिर सॉल्व भी कर लिया होगा. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस. सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की. फ्यूज्ड NaCl ऑलरेडी हम लोगों ने किया था. पहला एग्जांपल फ्यूज्ड NaCl ही था. सो यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन के थ्रू Na बनता था, Cl माइनस के ऑक्सीडेशन के थ्रू यहाँ पे Cl2 गैस बनता था. एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट pH का कंसेप्ट एक्वस सॉल्यूशन में वैलिड है, लिक्विड NaCl के लिए इसका कोई कंसेप्ट ही वैलिड नहीं है. सो ये भी नहीं कह सकते कि इट विल रिमेन सेम. वी हैव टू से दैट कंसेप्ट ऑफ pH इज नॉट एप्लीकेबल. सो व्हाट विल राइट, विल राइट कंसेप्ट ऑफ pH is not applicable, and that will the answer even in the this question. जहाँ भी फ्यूज्ड या मोल्टन दिखे, एक्चुअली यहाँ पर तो मैंने 2 ही क्वेश्चन दिया है. तो यहाँ पे अगेन यू विल राइट कंसेप्ट ऑफ pH is not applicable. ठीक है. सो यहाँ भी मोल्टेन है तो कैटायन विल अंडरगो रिडक्शन, सो इट विल प्रोड्यूस Na. K2SO4 होता तो K बनता, Na2SO4 है तो Na बनेगा. सल्फेट के ऑक्सीडेशन से हम लोगों ने सीखा था H2O8 2- बनता था. तो दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स. एंड ऑब्वियसली इफ देयर इज नो एक्वस सॉल्यूशन वी कैन नॉट टॉक अबाउट pH ऑफ द सॉल्यूशन. सो वील से कंसेप्ट ऑफ pH इज नॉट एप्लीकेबल. नाउ व्हेन वी गो टू एक्वस NaCl,
अभी याद कीजिए H2O वॉज वन ऑफ द कॉम्पिटिटर एट कैथोड एज वेल एज एनोड, बट जब भी Na+ के साथ H2O का कॉम्पिटिशन होता था, हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी, H2O के साथ कॉम्पिटिशन अगर Na+, K+, Li+, Mg2+, Ca2+, Al3+, इन सब आयंस का अगर कॉम्पिटिशन होगा तो वाटर इज गोइंग टू बी द विनर। लेकिन अगर वाटर का कॉम्पिटिशन Cu2+, Ag+ इन सब के साथ होगा, देन वाटर इज गोइंग टू बी द विनर, दिस आयंस आर गोइंग टू बी द विनर टू गिव यू मेटल। सो यहाँ पे चूंकि Na+ है तो वाटर इज गोइंग टू बी द विनर एंड दैट्स व्हाई इट विल गिव यू H2 गैस। सो यहाँ मिलेगा आपको H2 गैस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनोड का पार्ट, तो Cl- एंड वाटर की जब लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? सो देन वी हैव टू सी कि ईज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जब देखते हैं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आर द विनर when they are competing with H2O. So definitely Cl- is going to give you the product and the product will be obviously Cl2. So that's why यहाँ पे हमारा आंसर होगा Cl2 गैस। Now यहाँ पे pH की बात होगी, तो pH की जब भी बात होगी तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अगर ये रिएक्शन में H2 प्रोड्यूस होता है तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। रिएक्शन जो वाटर का होता है उसमें हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपके पास एक्वस सॉल्यूशन हो तो वहाँ पर अगर आप वाटर का रिडक्शन दिखाते हैं तो वाटर का रिडक्शन दिखाने के दो तरीके हो सकते हैं एक्चुअली। या तो आप लिख सकते हैं कि H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 प्लस 2OH माइनस, या फिर आप लिख सकते हैं 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2। तो इन दोनों रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि जब भी ऐसा रिएक्शन हो, भले इनके E0 अलग होंगे क्योंकि SRP वैल्यूज हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में H+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ OH- 1 होना चाहिए, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो एक्चुअल कंडीशन में H+ या OH- लेकर सेम E आएगा। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू रिएक्शंस, देखिए आप इस रिएक्शन को भी लीजिएगा तो इट इज सेइंग दैट वाटर इज कंज्यूम्ड एंड OH- इज प्रोड्यूस्ड। OH- आने से सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होना चाहता है, pH बढ़ता है। या दूसरे रिएक्शन से भी देखिए H+ कंज्यूम हो रहा है, H+ कंज्यूम होने का मतलब H+ कम हो रहा है तो pH बढ़ेगा। तो जब आपको रिएक्शन में दिखे कि सिर्फ H2 बन रहा है बट O2 फ्रॉम H2O नहीं बन रहा है, मतलब वाटर सिर्फ रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, देन वी से दैट नेट H+ इज डिक्रीजिंग, सो pH इज इंक्रीजिंग। सो यहां पर बोलेंगे pH इंक्रीजेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। सो दैट्स वन पार्ट। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट, अगेन कॉपर विल बी विनर इन कॉम्पिटिशन विद वाटर, सो इट विल गिव यू Cu। एंड सल्फेट एंड वाटर में जब कंपटीशन होता है तो वाटर इज द विनर, सो विल बी गेटिंग O2 गैस। नाउ जब सिर्फ O2 आता है, दैट मीन्स अगर वाटर का कंपटीशन सल्फेट के साथ होता है, पहले भी देखा था कि वाटर का कंपटीशन सल्फेट के साथ होगा तो वाटर इज गोइंग टू बी द विनर, है ना। लेकिन अब वाटर का ऑक्सीडेशन के थ्रू जो O2 बनता है, इन दैट पार्ट इफ यू सी, अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, रिजल्ट दोनों जगह से क्वालिटेटिव रिजल्ट सेम ही आना है, दैट वाटर इफ इट इज गिविंग यू O2 इट इज रिलीजिंग H+। H+ इसका मतलब सिस्टम में बढ़ रहा है, H+ बढ़ने का मतलब है pH कम होगा। सो अगर सिर्फ O2 बने वाटर से और H2 ना बने, देन वी से H+ इज इंक्रीजिंग, सो pH इज डिक्रीजिंग। दिस इज वन पार्ट जिसको IIT ने अभी तक टच नहीं किया है, क्वांटिटेटिवली तो बिल्कुल भी नहीं टच किया, तो वो हम लोग देखेंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वांटिटेटिव रिजल्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर आई विल बी गिविंग यू 1 और 2 क्वेश्चन जिसमें मैं pH की बात कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है कि यू नीड टू नो pH बढ़ रहा है कम हो रहा है, देन वी विल डिसाइड इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट विल बी द pH आफ्टर अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। एक्वस AgNO3 की बात करते हैं। एक्वस AgNO3 में आपके पास Ag+ वर्सेज वाटर है। अगेन इफ यू रिमेंबर, Ag+ इज ऑन द विनर साइड इन कॉम्पिटिशन विद वाटर, है ना। ये देखा था हम लोगों ने, Cu+ Ag+। लास्ट में मैं ये रिजल्ट भी अच्छे से समराइज करके आपको दे दूंगा। सो यहाँ पे Cu+, Cu2+, Cu+, Ag+, Hg2+, ये सारे जो हैं दे आर द विनर इन कंपेरिजन टू और इन कॉम्पिटिशन विद वाटर। सो यहाँ पे अपन को मिलेगा Ag, बट नाइट्रेट वॉज लूजर इन कॉम्पिटिशन विद वाटर, सो यहाँ वाटर इज गोइंग टू गिव यू O2। तो यहाँ अगर H2 ना दिखे और यहाँ O2 दिखे तो हम लोग लिखेंगे pH डिक्रीजेस।
अगर यहाँ H2 दिखे और यहाँ O2 ना दिखे तो विल सी pH इंक्रीजेज। अगर यहाँ H2 और O2 दोनों दिखे देन वाटर की ही इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो जितना H प्लस बना उतना ही OH माइनस बनेगा, या आप कहेंगे जितना H प्लस कंज्यूम हुआ उतना ही OH माइनस कंज्यूम हुआ, दैट्स व्हाई pH विल रिमेन सेम। लेट्स सी दिस एग्जांपल। यहाँ पे कैल्शियम 2 प्लस और वाटर की लड़ाई होती है तो वाटर इज द विनर ऑब्वियसली, कैल्शियम 2 प्लस इज ग्रुप 2 मेंबर है ये, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे यू विल बी गेटिंग H2 गैस। I माइनस एंड वाटर की लड़ाई में I माइनस जीतता है तो यू विल बी गेटिंग I2। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इट विल बी सॉलिड। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। अगेन ये ऐसा वाला केस है जहाँ यहाँ तो O2 नहीं मिला लेकिन यहाँ H2 मिल रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पे pH is increasing, so pH increases. Next, aqueous CuBr2, Cu2 plus और water की लड़ाई में Cu is the winner, but Br minus and H2O की लड़ाई में Br minus is the winner, so we will be getting Br2. Room temperature पे it is liquid, so it will remain water, तो aqueous लिखे या Br2 liquid लिखे चलेगा। यहाँ पर ना तो H2 दिख रहा है ना यहाँ O2 दिख रहा है। अगर वाटर ना तो ऑक्सीडेशन में गया ना रिडक्शन में गया देन pH विल रिमेन सेम। तो pH रिमेनिंग सेम के दो केस बन गए, या तो यहाँ H2 और यहाँ O2 दोनों साथ में मिले या दोनों में से कुछ भी ना मिले, तो उन दोनों केस में हम लोग लिखेंगे pH विल रिमेन सेम। मतलब इस इलेक्ट्रोलिसिस में यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज इन pH। K2SO4 में K प्लस इज द कैटायन, वाटर के सामने K प्लस हार जाता है, सो वाटर विल बी गिविंग यू प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज H2 एट कैथोड। सल्फेट और वाटर की लड़ाई में भी वाटर ही जीतता है, सो यहाँ पर यू विल बी गेटिंग O2 गैस एज द प्रोडक्ट। एंड इफ यू सी दीज टू प्रोडक्ट्स, तो जैसा मैंने बताया था अगर दोनों जगह वाटर से ही प्रोडक्ट मिले या दोनों जगह वाटर से प्रोडक्ट ना मिले, इन दोनों केसेस में pH विल रिमेन सेम, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो रिएक्शन में ना तो H प्लस दिखेगा ना ही OH माइनस दिखेगा। दैट मीन्स ना तो H प्लस बढ़ रहा है नेट ना ही OH माइनस बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई pH विल रिमेन सेम। एक्वस LiOH, Li प्लस अगेन ग्रुप 1 का मेंबर है, तो यहाँ पर वाटर इज गोइंग टू बी द विनर, H2 गैस मिलेगा। OH माइनस के ऑक्सीडेशन से यू आर गेटिंग O2। तो बात अगर हम लोग यहाँ पर pH के चेंज की करें तो अगेन जब रिएक्शन लिखकर बैलेंस करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन में ना तो H प्लस दिखेगा ना ही OH माइनस दिखेगा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल जस्ट ऑब्जर्व कि यहाँ पे H प्लस एंड OH माइनस का नेट चेंज विल बिकम जीरो, क्योंकि अगर आप लिखिएगा, जस्ट आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे आप रिएक्शन लिखते हैं तो इफ़ यू आर राइटिंग द बैलेंस्ड रिएक्शन, सो यहाँ पर देखिए कि वाटर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में जाता है, सो चूंकि ये LiOH है तो मैं बेसिक मीडियम में बैलेंस करके दिखाता हूँ। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ वाटर यू विल बी राइटिंग 2H2O लिक्विड, देन इट विल गिव यू +2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू H2 प्लस 2OH माइनस, दैट इज बेसिक मीडियम में वाटर के रिडक्शन का रिएक्शन। हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन जब हम लोग लिखते हैं तो 4OH माइनस गिविंग O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ना अब यहाँ ऐसा तो लग रहा है कि 4 कंज्यूम हो रहे हैं या 2 प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड दैट्स व्हाई, चूंकि इलेक्ट्रॉन बराबर करना, ऐसा करने से क्या हो रहा है देखिए OH माइनस नेट कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन में अगर OH माइनस दिखे ही ना तो इसका मतलब है कि OH माइनस का कंसंट्रेशन विल नॉट चेंज विद रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर बराबर रहेगा तो pH भी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इन शॉर्ट बता दिया था कि अगर यहाँ पर H2 और यहाँ पर O2 दिखे तो हम लोग कहेंगे pH इज नॉट चेंजिंग। अगर यहाँ पर ना तो यहाँ पे H2 दिखे ना ही यहाँ पे O2 दिखे तो pH विल रिमेन सेम अगेन। सो बट अगर सिर्फ H2 दिखे और O2 ना दिखे pH इंक्रीजेस, अगर सिर्फ O2 दिखे और H2 ना दिखे तो pH डिक्रीजेस। तो दीज आर द 4 केसेज आप लोगों को समझ में रखना है अबाउट pH चेंज। सो अगेन विल से pH विल रिमेन सेम।
एंड लास्ट क्वेश्चन, एक्वस सोडियम एसीटेट। अगेन अभी कैटायन देखें, Na प्लस वर्सेज वाटर, वाटर इज द विनर टू गिव यू H2 गैस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एसीटेट एंड H2O, हम लोगों ने बात की थी एसीटेट इज द विनर, बट एसीटेट प्रोडक्ट क्या देता है? तो ये जो रिएक्शन है एक्वस CH3CONA की इलेक्ट्रोलिसिस, ये आपको ऑर्गेनिक में आएगा, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। रिएक्शन में होता क्या है कि यहाँ तो आपको H2 मिल गया, ये रिएक्शन आप लोग जानते हैं ना, हम लोगों ने यूज किया हुआ है। बट अगर अनायन की बात करें तो इन जनरल हम लोग RCOO- की बात करते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन होने का मतलब है, क्या बोलते हैं यहाँ पे, RCOO डॉट बन जाता है, फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, देन इट गोज टू प्रोड्यूस R डॉट प्लस CO2 गैस। तो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये R डॉट पे एक दूसरा R डॉट आएगा विच विल फॉर्म RR। तो यहाँ R अपने लिए CH3 है, सो दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे, देर आर टू प्रोडक्ट्स, एक तो CO2 आएगा ही आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा CH3 दैट इज C2H6, सो दैट इज अनदर प्रोडक्ट। तो इथेन गैस मिलेगा। तो ये अल्केन के फॉर्मेशन का एक मेथड भी बताया जाएगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो दिस इज कॉल्ड इथेन प्लस CO2 आर गोइंग टू बी द प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई विल राइट प्रोडक्ट्स क्या क्या बनने वाले हैं, C2H6 गैस प्लस CO2 गैस, दीज आर द प्रोडक्ट्स एट एनोड। नो, इस कहानी में फिर से यहाँ O2 नहीं दिखा है बट यहाँ H2 दिखा है। इसका मतलब है यहाँ H प्लस कम होने वाला है या OH माइनस बढ़ने वाला है। अगर H प्लस कम होता है तो हम लोग बोलते हैं pH इंक्रीजेज। तो ये सारे के सारे 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके सामने हैं। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट रहेगा, यू कैन पोस्ट योर डाउट्स और कन्फ्यूजन इन द कमेंट सेक्शन। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैंने बोला है कि एंड में मैं समराइज करके आपको सब कुछ बताऊंगा एक साथ, ठीक है। सो दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस 10 क्वेश्चंस, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कहाँ बढ़ेंगे, ये नॉर्मल है, इफ कोई वर्ड ना लिखा जाए, सीधा बोला जाए इनकी इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होने वाला है, तो दीज आर द रिजल्ट्स। बट विल सी 4 स्पेशल केसेस, मतलब उस लैंग्वेज में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने से समटाइम्स विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आइदर एट कैथोड और एट एनोड और एट बोथ द प्लेसेस। तो वो कौन से 4 स्पेशल केसेज हैं हम लोग देखेंगे, उन चारों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा बिकॉज वर्ड्स मे बी चेंज्ड इन द क्वेश्चन। तो सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू गिव यू दीज प्रोडक्ट्स विद दीज टाइप ऑफ चेंज इन pH। बट अगर वर्ड्स चेंज हो गए, लैंग्वेज चेंज हो गया, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स डाल दिए उन्होंने, देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे 4 स्पेशल केसेस की बात करेंगे, देन योर प्रोडक्ट मे बी चेंज्ड। सो पॉज द वीडियो, नोट दिस सॉल्यूशंस एंड देन विल मूव टू द स्पेशल केसेज। होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मूव करते हैं स्पेशल केसेज पे। So among the special cases, the first special case is when you are doing the electrolysis of aqueous solution of dilute or very dilute NaCl। ऐसे वर्ड यूज कर दें तो क्या करेंगे। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लोगों ने बात की थी केस नंबर 3, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl, तो यहाँ पे अब हम लोगों ने जब बात की थी तो पहले बोला था वाटर इज द विनर। सो इन एनी केस एट कैथोड H2 इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इफ सिंपली एक्वस NaCl की बात हो रही हो इलेक्ट्रोलिसिस में तो। लेकिन अब अगर एनोड पे आते हैं तो हम लोग बोला था Cl माइनस एंड H2O का कॉम्पिटिशन है। SOP वैल्यू वॉज सजेस्टिंग दैट वाटर शुड बी द विनर, बट हम लोगों ने बोला था Cl माइनस जो है वो ड्यू टू ओवर वोल्टेज इट वॉज बिकमिंग द विनर एंड Cl2 गैस वॉज प्रोड्यूस्ड। दिस थिंग इज हैपनिंग by considering moderate or high concentration of Cl minus। but if, तो जैसा कि मैंने बताया कि ओवर वोल्टेज तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है ये, बट कंसंट्रेशन इटसेल्फ इज फैक्टर, क्योंकि SOP वैल्यू जो है दीज आर द इंडिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दैट्स वाई हो सकता है कंसंट्रेशन चेंज करने के बाद ये नंबर जिस तरीके से चेंज होंगे तो ऑर्डर मे बी अल्टर्ड एंड दैट्स वाई इफ वर्ड लाइक डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट यूज किया जाता है तो कैथोड पे कोई चेंज नहीं आने वाला है, बट एनोड पे इस बार गेम चेंज होने वाला है। एंड राइट नाउ जो मैंने बोला था इस
NaCl एक्वस का अगर इलेक्ट्रोलिसिस किया तो एनोड पे प्रोडक्ट वॉज Cl2। तो उसमें एक बात छुपी हुई है, और छुपी हुई बात है कि हम लोगों ने Cl- का कंसंट्रेशन मॉडरेट और हाई मान के चला था, उसको डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट नहीं किया था। सो जब भी डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट आ जाए तो अब कहानी चेंज हो जाएगी एट एनोड। तो कैथोड पे कुछ नहीं होने वाला है, कैथोड पे वही रिजल्ट है। कैथोड पे स्टिल विल से दैट H2O इज गोइंग टू गिव यू H2। सो दो तरीके से रिएक्शन हम लोगों ने बैलेंस किया, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 गैस प्लस 2OH माइनस, ये लिख सकते हैं। और यू कैन राइट 2H प्लस, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग है, आप इसको 2H3O प्लस भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 2H2 और लिखना पड़ेगा आपको। सो यू कैन राइट H2 गैस। सो ये दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन लेके आप चल सकते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट्स वन पार्ट। बट अगर एनोड की बात की जाए, इस बार Cl- will not be winner under this condition. Again, be very careful. If these words are used, then only you will say that water will be winner even at anode, and that in that case you will say water is going to be oxidized. तो again दोनों मीडियम में हम लोग बात कर सकते हैं। So basic मीडियम में अगर हम लोग बात करें तो we'll be writing the reaction 4OH minus aqueous giving O2 gas plus 2H2O plus 4 electron, or you can also write 2H2O liquid giving O2 plus 4H plus 4 electron. So इन दोनों रिएक्शन से पता क्या चला कि व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट्स क्या है? सो प्रोडक्ट्स आर H2 गैस एट कैथोड and O2 gas at anode. So in this process definitely अगर हम लोग pH की बात करें तो we'll say if these reactions are happening which is under dilute or very dilute condition, then pH का change will not happen during the electrolysis. So pH of the solution will remain same during the electrolysis of dilute or very dilute NaCl. Okay, so that was first case. Let's move to second special case. चलिए सेकेंड के स्पेशल केस आपके सामने है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग Hg कैथोड। इसका मतलब इससे पहले तक जो बातें हम लोगों ने नहीं की कैथोड या एनोड के मटेरियल की, वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट बनने लगी। तो दीज आर द फैक्टर्स जो इनडायरेक्टली मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की थी, उसमें एक और चीज़ ऐड की थी कि कंसंट्रेशन। पिछले स्पेशल केस में पता चला कि कंसंट्रेशन विल मैटर बिकॉज डिफरेंट कंसंट्रेशन विल गिव यू डिफरेंट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सो दैट विल चेंज द डिस्चार्ज पोटेंशियल एट अ गिवन कंडीशन। तीसरी चीज़ हम लोगों ने पहले भी बात कर ली थी ओवर पोटेंशियल की, विच वॉज द कॉज कि Cl- का प्रेफरेंशियली ऑक्सीडेशन हो जा रहा था इन प्रेजेंस ऑफ और इन कॉम्पिटिशन विद वाटर, एंड दैट वाज अनदर केस। तो अभी एक चौथा केस समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोड का मटेरियल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी तक जितने केसेस जहां पर कुछ नहीं बोल रहा था मैं इलेक्ट्रोड के बारे में, इट वाज अंडरस्टूड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम की बात अभी तक हम लोग कर रहे थे, विच वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी रिएक्शन। बट अगर ये मेंशन कर दिया और मेंशन करे तभी एक केस कंसीडर करना है, अदरवाइज जो अभी तक करते रहे थे वही हमारा केस है। सो अगर उन्होंने Hg कैथोड कर दिया, नाउ अब बात आती है कैथोड पे क्या होगा। तो वाटर वर्सेस Na+ में हम लोगों ने वाटर को विनर बताया था, लेकिन जैसे ही Hg कैथोड रखते हैं इस बार ओवर पोटेंशियल वाली चीज़ फिर से मैटर करती है, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि सोडियम इज हैविंग वेरी हाई एफिनिटी विद Hg, दे फॉर्म अमलगम। सो NaHg का अमलगम बनता है, एंड दैट्स वाई इट डिपेंड्स कि कैथोड क्या है। इफ कैथोड इज Hg, सोडियम विल हैव इन जनरल एस ब्लॉक मेटल्स are having very special affinity with Hg, and they will preferably start getting reduced to form the metal, and that's why if you are having this case, एनोड पे कोई कहानी नहीं बदलने वाली है, बट इस बार कैथोड की कहानी बदल जाएगी,
एनोड की कहानी कब बदल रही है, जब हम लोगों ने कंसंट्रेशन को काफ़ी हाई रखा या मॉडरेट रखा या कुछ नहीं बोला है, तो क्लोराइड आयन से Cl2 बनाना है। अगर डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट, जो कि पिछला स्पेशल केस था, तो जाके हम लोगों को वाटर से O2 बनाना है एनोड पे। इस बार अगर हम लोगों ने Hg कैथोड यूज किया है, तो कैथोड पे जो रिएक्शन स्टार्ट होगा वो इस बार वाटर का नहीं होगा, इस बार हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा सोडियम का, एंड सोडियम सॉलिड विल बिकम द प्रोडक्ट, एंड विद Hg इट विल बी फॉर्मिंग NaHg अमलगम। इसी को हम लोग अमलगम बोलते हैं। इट इज Hg एल्लोय होता है, तो अमलगम। सो दैट्स वन पार्ट। नाउ एनोड पे कोई रिएक्शन में फर्क नहीं है, एनोड पे वही कहानी है। चूंकि डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट जब तक ना लिख दे तब तक हम लोग मॉडरेट या हाई कंसंट्रेशन मान के चलते हैं। सो वी विल बी गेटिंग Cl माइनस गिविंग हाफ Cl2 गैस plus electron. So these are the reactions, and product is sodium solid, which will ultimately convert into sodium Hg amalgam and Cl2 gas. So that was second special case. तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं तीसरे स्पेशल केस पे। थर्ड स्पेशल केस इज ऑन योर स्क्रीन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग हाई करंट डेंसिटी। अगेन कंसंट्रेशन जब तक कुछ नहीं लिखा होता था, इफ यू आर हैविंग सल्फेट, तो हम लोग सल्फेट एंड वाटर के कंपटीशन में वाटर को विनर बनाते थे। बट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट इज वेरी हाई, लाइक यहाँ पर मैंने लिखा 50% और अबव, साथ में ये वर्ड दे दिया यूजिंग हाई करंट डेंसिटी, इस तरह का अगर कुछ लिख दिया जाए, देन यू विल स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द सल्फेट और बायसल्फेट, जैसा भी लिखना है हम लोग देखेंगे, बैलेंसिंग उसी तरीके से कर सकते हैं हम लोग। सो सल्फेट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट इफ यू आर हैविंग वेरी हाई कंसंट्रेशन लाइक 50% और अब ऐसा कुछ लिख दिया हो, कंसंट्रेटेड और 50% और मोर देन 50%, या यूजिंग हाई करंट डेंसिटी भी साथ में अटैच रहेगा। बट ये दीज आर द मस्ट वर्ड्स कि इनको लिखना ही चाहिए, तभी जाके हम लोग ये काम करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग बोलते हैं H2SO4 इज द सोर्स ऑफ H प्लस एंड HSO4 माइनस, एंड देन कैथोड की कहानी अभी भी नहीं बदली है, क्योंकि वाटर से बनाइए या H प्लस से बनाइए, H प्लस इज गोइंग टू गिव यू H2। एसिडिक मीडियम में वाटर के रिडक्शन का भी बैलेंस रिएक्शन यही हो जाता है। बट अगर एनोड की बात करें, इस बार कहानी बदल गई है। वाटर से अगर बनाते तो O2 बनता, लेकिन अगर हम लोग HSO4 माइनस से बनाते हैं तो बैलेंस रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो इट विल बिकम H2S2O8, और अगर सल्फेट से अनायन के फॉर्म में बनाएंगे तो H2O8 2 माइनस लिख सकते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन। नाउ यहाँ तक तो काम हो गया, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेथड है। सो प्रिपरेशन ऑफ, ये बता देता हूँ मैं, और इनऑर्गेनिक में वैसे भी आने वाला है। प्रिपरेशन ऑफ H2O2 में यही सारे स्टेप्स करते हैं, ये तो स्टेप्स आएंगे ही। सो ये स्टेप होने के बाद, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये जो H2S2O8 आया है, that will be treated with water, it will produce H2SO4 plus H2SO5, and that H2SO5 on treatment of water will form again H2SO4 plus H2O2. So this is also preparation method of H2O2, and that's why this special case is important. So इसको ध्यान में रखिएगा। जब तक हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो दीज आर द रिएक्शंस जो आपको कंसीडर करना है। तो एज अ प्रोडक्ट H2 गैस एट कैथोड, H2O8 2 माइनस एज इन द फॉर्म ऑफ आयन हम लोग लिख सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ एसिड H2S2O8 इज द एसिड विच विल बी फॉर्म्ड एट एनोड। सो दैट इज द थर्ड स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब जाते हैं चौथे और आखिरी स्पेशल केस पे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक में कई बार उसकी चर्चा होगी, इसलिए मैंने बोला वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, कंसेप्चुअल है इसलिए भी, और इसके साथ साथ इनऑर्गेनिक में काफ़ी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको पूछी जाती हैं और आती हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। आप देखिएगा कि इनऑर्गेनिक में जब मेटलर्जी में जाएंगे आप, या डिफरेंट केसेस में आप लोग फॉर्मेशन ऑफ मेटल की बात करेंगे, तो देर इज़ अ लास्ट स्टेप कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल ड्यूरिंग मेटलर्जी, मेटल के एक्सट्रैक्शन में आता है। तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो कई बार यूज होगा, तो पहले
हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट डिस्कस कर देते हैं और फिर उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा कि इनऑर्गेनिक में इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो लेट्स गो टू द लास्ट स्पेशल केस विच इज केस नंबर 4. Now this case is electrolysis of aqueous solution of CuSO4, but this time we are using Cu electrodes. So इलेक्ट्रोड फिर से चेंज किया, जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रोड में मैटर लाइक Hg इलेक्ट्रोड यूज करने पर सोडियम प्लस का रिडक्शन स्टार्ट हो गया था इन कॉम्पिटिशन विद वाटर। तो वैसा यहाँ पर क्या होने वाला है देखते हैं। तो जब अगर हम लोग कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पे अपने पास जो है Cu2 प्लस वर्सेज H2O था। अगर हमने दोनों जगह कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया, चलो मैंने कॉपर लिख भी दिया, तो ये सीधा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि मेटल है, इसका रिडक्शन होकर निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा। बहुत रेयरली मेटल निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं और वो भी मेटल कार्बोनिल्स में। वो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे जरा सा डिस्कस किया था, आगे आपको फिर से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मिलेगा वो, बट दैट इज अ रेयर फिनोमेनन, नॉर्मली नहीं मिलेगा। तो कॉपर यहाँ इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि कॉपर ऑलरेडी जीरो में है, अगर रिड्यूस होगा तो नेगेटिव में जाएगा, दैट इज नॉट हैपनिंग हियर। सो यहाँ पर ये वर्सेज ये में ऑब्वियसली Cu2 प्लस वॉज द विनर, सो दिस इज द विनर। सो डेफिनेटली यहाँ रिएक्शन क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर, दैट्स वन रिएक्शन। एनोड पे क्या होने वाला है, एनोड पे जो रिएक्शन होगा यहाँ पर देखते हैं कॉम्पिटिशन क्या क्या है। सल्फेट अनायन होता है फ्रॉम द सॉल्ट, उसके अलावा H2O, और फिर से जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है एनोड पे दैट इज कॉपर। इन तीनों का कंपटीशन है। अब देखते हैं इन तीनों में कंपटीशन में जीतता कौन है। तो इन दोनों का कंपटीशन ऑलरेडी हम लोगों ने कहा था ये जीता था। नाउ वी हैव कंपटीशन ऑफ H2O एंड Cu। तो इसको तो कंसीडर भी नहीं करते, इसको ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए हैं क्योंकि इसका कंपटीशन होगा तो दिस इज द विनर। सो लेट्स रिजेक्ट इट फर्स्ट। सो अब बच गया दो चीजें। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन के लिए जब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं तो व्हाट वी राइट, 2H2O गिविंग O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 अगर हम लोग SOP वैल्यू देखते हैं तो दैट वाज -1.23 वोल्ट। ना अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन होने से जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन। अभी याद कीजिए इसके उल्टे रिएक्शन का E0 वाज 0.34 वोल्ट, तो इसका हो जाएगा -0.34 वोल्ट। बट स्टिल इफ यू सी दिस SOP इज हायर, दिस इज हायर SOP, और वो भी 0.8 जैसा डिफरेंस आ रहा है, सो काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एंड दिस इज लोअर SOP, एंड दैट्स व्हाई दिस टाइम दिस बिकम्स द विनर। और अगर ये विनर है तो रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, सो विल से एनोड का रिएक्शन अब चेंज हो गया है, और वो रिएक्शन चेंज हो गया क्या हुआ है कि दिस टाइम कॉपर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड दैट विल प्रोड्यूस Cu2 प्लस एंड दैट विल गो इनटू द सॉल्यूशन। अब इस पूरी कहानी में अगर आप देखिए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, तो उसको हम लोग एज ए नोट लिख सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि एनोड का मटेरियल इटसेल्फ हैज पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड और अटैक्ड इलेक्ट्रोड। वो कब काम कर रहा है, जब वो एनोड के फॉर्म में है। सो दैट इज आवर फर्स्ट नोट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, व्हेन material of electrode participates in reaction, it is called active or attacked electrode। इस पे अटैक हुआ है ये भी कह सकते हैं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड। और ये कब होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस it may occur at anode only,
क्यों? क्योंकि एनोड पे ही मेटल कैटायन के फॉर्म में जाने की टेंडेंसी रख सकता है। जब हम लोग कैथोड की बात करते हैं मेटल अनायन नहीं जाने चाहेगा, सो दैट्स वाई कैथोड का मेटल कैन नॉट बी अटैक्ड इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड, बट एनोड में भी, जैसे यहाँ पर हो गया, वो हर बार जरूरी नहीं। प्लेटिनम वॉज नॉट अटैक्ड इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। सो दैट इज सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, इस पूरे प्रोसेस में देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को देखें तो कैथोड पे Cu2+ कंज्यूम हो रहा है, Cu प्रोड्यूस हो रहा है। एनोड पे Cu कंज्यूम हो रहा है, Cu2+ प्रोड्यूस हो रहा है। तो Cu2+ जितना यहाँ कंज्यूम होगा उतना यहाँ प्रोड्यूस होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ का कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसकी भी बात करेंगे कि अगर हम लोग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 using Cu electrodes, concentration of Cu2+ ion in solution remains constant, क्योंकि Cu2+ जितना कंज्यूम हो रहा है एट कैथोड उतना ही एट एनोड वो प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब इनका एप्लीकेशन कैसे आता है, तो हम लोग जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में इसको हम लोग यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दिस वाज स्पेशल केस, क्योंकि अभी तक ट्रेडिशनली जब मैं एक्वस CuSO4 बोल रहा था तो कैथोड पे Cu2+ वॉज गेटिंग रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर, एनोड पे सल्फेट वर्सेज H2O सिर्फ हो रहा था और वहां पर H2O वॉज द विनर एंड इट वॉज प्रोड्यूसिंग O2। बट दिस टाइम as Cu is also present there, Cu is going to be oxidized to give Cu2+, and that's why water से O2 नहीं मिल रहा है, सिर्फ Cu जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Cu2+ दे रहा है। सो दैट्स अनदर पार्ट। तो ना तो हम लोगों को, और एक अदर एस्पेक्ट क्या है, ना तो कैथोड पे H2 गैस मिल रहा है, ना एनोड पे O2 मिल रहा है। सो pH ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑल्सो रिमेन सेम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सारे पॉइंट बनते हैं यहाँ पे। सो दिस वॉज द फोर्थ एंड लास्ट स्पेशल केस। लेकिन इस केस से रिलेटेड, जैसा मैंने बताया, इनऑर्गेनिक का एक कंसेप्ट है, आएगा इनऑर्गेनिक में भी आएगा, बट चूंकि यहाँ से रिलेटेड है इसलिए मैं उसको समझा ही देता हूँ। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। कहाँ यूज़ किया जाता है, लाइक कॉपर में Ag के लिए, Au के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो उसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में किया क्या जाता है, you'll be having a copper slab which will be impure, so हम लोग क्या बोलेंगे, impure Cu slab। इस कॉपर के इम्प्योर स्लैब को एज एनोड यूज किया जाता है और उसके साथ एक बहुत ही थिन स्ट्रिप और थिन प्लेट ऑफ वेरी प्योर कॉपर ले लिया जाता है। सो दिस कैन बी कॉल्ड थिन स्ट्रिप ऑफ वेरी प्योर या प्योर कॉपर, दैट मीन्स इट इज प्योर कॉपर। ओके, ये लिया जाता है एंड दैट इज एक्टिंग एज कैथोड, क्योंकि बैटरी का ऐसा पोलरिटी डाला है, इस पे प्लस इस पे माइनस है। दिस इज एक्टिंग एज एनोड एंड दिस इज एक्टिंग एट कैथोड। नाउ यहाँ जो है, यहाँ क्या है, तो दिस इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी जस्ट जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 की इलेक्ट्रोलिसिस की थी यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड, वही तो है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली वी नो दैट कि यहाँ पर रिजल्ट क्या क्या होने वाला है। सो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ऑब्वियसली देयर विल बी Cu2+ फ्रॉम सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी रिड्यूस टू फॉर्म कॉपर। इसका मतलब यहां से Cu2+ जो है वो इसकी तरफ जाएगा टू फॉर्म कॉपर। तो ये सॉल्यूशन वाला जो था वो कॉपर स्ट्रिप यहां पे जमा होना स्टार्ट होगा। नाउ एनोड पे क्या करेंगे, एनोड पे हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट डिस्कस किया था स्पेशल केस में, दिस टाइम कॉपर इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Cu2+। नाउ ये जो है ये ऑन प्योर कॉपर स्ट्रिप और ये फ्रॉम इम्प्योर Cu स्लैब। सो ये पूरी कहानी में देखिए क्या हो रहा है,
यहाँ का इम्प्योर स्लैब में से कॉपर निकल के इधर आ रहा है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का Cu2+ जो है वो इस पे जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं इधर का कॉपर मूव कर रहा है इसकी तरफ। सो दैट इज द फेनोमेनन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इस तरीके से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जाती है। अब इसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या। जैसा मैंने बताया था Cu2+ का कंसंट्रेशन विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इनसाइड द सॉल्यूशन। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर अब इस स्लैब में जहाँ इम्प्योर बोला है तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेंगी। तो दो टाइप की इम्प्योरिटीज रहती हैं। सो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं गो टू सॉल्यूशन, ठीक है। सो दैट्स वन पार्ट। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है उनका क्या होगा, ऑब्वियसली वो आएंगे और वो नीचे जाएंगे। नीचे किधर जाएंगे, तो यहां पे जाएंगे। चूंकि ये एनोड के नीचे जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एनोड मड। दिस इज इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, पहली बात तो कंसेप्चुअल भी चीज है, और दूसरी चीज मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी भी सेलिंग होती है, इसको भी बेचा जाता है। सो व्हाट वी से, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज जो है दे आर settle down at bottom of container below anode, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं these are called anode mud. Why it is important? Because it contains precious metals like silver, gold, platinum, etc. And that's why this is also important. So एनोड मड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। एक चीज है कि कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इज नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। इम्प्योर copper is moving from the impure slab to the solution, and then solution का Cu2+ is moving from solution toward the pure copper cathode. So that is electro refining of copper. तो ये इनऑर्गेनिक में आएगा फिर से, लेकिन कंसेप्चुअली अगर आपको समझा हुआ है तो वहाँ पर ये चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि रट्टा मारना पड़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्या यही काम और किसी के साथ कर सकते हैं? बहुत सारे मेटल्स के साथ ऐसा होता है। तो कैसे करते हैं? सो कॉपर के लिए हम लोगों ने देखा वी आर यूजिंग CuSO4 सॉल्यूशन। ऑब्वियसली जो इम्प्योर और प्योर वाला पार्ट है वो उसी मेटल का होना चाहिए। सो वैसा ही हम लोग Zn का भी कर सकते हैं यूजिंग ZnSO4 सॉल्यूशन। हम लोग टिन का कर सकते हैं यूजिंग SnSO4 सॉल्यूशन। वैसा ही Ag का कर सकते हैं हम लोग, सिल्वर का कर सकते हैं यूजिंग AgNO3 सॉल्यूशन। गोल्ड का कर सकते हैं यूजिंग AuCl3 सॉल्यूशन। ये सब भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे निकेल का कर सकते हैं यूजिंग निकेल नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये सब काम किए जा सकते हैं। तो इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। लेड का किया जा सकता है। लेड का एक सॉल्ट होता है PbSiF6, तो ये सॉल्यूशन लिया जा सकता है। एल्युमिनियम का भी किया जाता है यूजिंग Al2O3 प्लस Na3AlF6, दिस इज कॉल्ड क्रायोलाइट, प्लस BaF2 और CaF2। CaF2 इज कॉल्ड फ्लोरस्पार। ये दोनों भी यूज किए जाते हैं। अब Al का यूज करने के लिए Al2O3 यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों चीजें क्यों यूज किया जाती है? यहाँ पर CF2 अवॉइड कीजिए, BaF2 लेते हैं। सो ये क्या है? क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट का क्या यूज है? इसके दो फंक्शन कहे जाते हैं। एक तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, तो इसको मेल्ट करने के लिए, इसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए वी यूज Na3AlF6। दूसरा, इट वर्क्स एज अ सॉल्वेंट ऑल्सो। दैट्स दीज आर द टू रोल्स ऑफ क्रायोलाइट। BaF2 का क्या रोल है? BaF2 ऑल्सो लोअर्स डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मिक्सचर। तो इन दोनों का रोल है, पहला मेल्टिंग पॉइंट को लोअर डाउन करना। Na3AlF6 का एक एडिशनल रोल है, इट वर्क्स एज अ सॉल्वेंट फॉर दिस Al2O3। सो दीज आर द रूल्स ऑफ दीज टू एडिशनल सब्सटेंसेज। तो इस तरीके से हम लोग इन सब के लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने कॉपर के लिए यहाँ किया है। एक और लास्ट चीज है, जैसे हम लोगों ने अभी तक जो काम किया वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोला, एक और एप्लीकेशन आता है इलेक्ट्रोलिसिस का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो भी किया जा सकता है यहाँ, उसको भी समझते हैं। सेम चीज है,
मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो इलेक्ट्रोलिसिस कैसे यूज किया जा सकता है, इसको न्यूमेरिकल में आईआईटी ने कई बार पूछा हुआ है, मेडिकल के एग्जाम में भी कई बार आता है। न्यूमेरिकल में हम तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस के क्वांटिटेटिव पार्ट में, बट आज हम लोग क्वालिटेटिवली उसको भी समझ लेते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो वो क्या है। मान लीजिए आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करनी है, लाइक गोल्ड का एक बहुत ही थिन सरफेस क्रिएट करना है आपको, या सिल्वर का एक बहुत ही थिन सरफेस क्रिएट करना है, जैसा किया जाता है। बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं हम लोग सोने का पानी चढ़ाना, चांदी का पानी चढ़ाना, दैट इज इन टेक्निकल लैंग्वेज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ वेरी थिन सरफेस ऑफ अनदर मेटल ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट। तो जैसे आपको गोल्ड का अगर चढ़ाना है, लाइक यू टेक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KaUCN2। अब यहाँ पर हम लोग लेने को AuCl3 भी ले सकते हैं, बट दैट विल हैव वेरी इजी रिलीज ऑफ गोल्ड। हम लोग चाहते हैं बहुत ही स्लो रिलीज हो, तो इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स इट विल गिव यू वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड विद टाइम, एंड दैट्स वाई वी वांट अ वेरी थिन लेयर, क्योंकि कॉमर्शियल एस्पेक्ट उसका भी देखना पड़ेगा। एंड दैट्स वाई लाइक ये आपने दिया है, तो क्या होगा कि यहाँ पर गोल्ड का Au3+ विल बी रिड्यूस्ड हेयर टू फॉर्म गोल्ड. So that will create a very thin layer of gold over this object. So it is going to have layer of plate of gold. So प्लेट ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको प्लेटिंग चढ़ानी है वहाँ पे गोल्ड थ्रू रिडक्शन जा रहा है, तो दैट शुड बी यूज्ड एज कैथोड। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर चढ़ाना है उसको कैथोड की तरह लेना चाहिए और फिर जाके आपको ये चीज़ मिलेगी। तो ऐसा किसके साथ कर सकते हैं, अगर कॉपर चढ़ाना है तो CuSO4 का सॉल्यूशन ले लीजिए, सिल्वर चढ़ाना है तो KAgCN2 ले लीजिए, गोल्ड चढ़ाना है तो KAuCN2 ले लिया। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट क्लास में जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात हम लोग करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि इससे रिलेटेड आईआईटी ने ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द फेवरेट सेक्शन ऑफ आईआईटी। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आज जो हम लोगों ने सीखा, जस्ट मैं समराइज कर देता हूँ उसको बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में। कुछ हाफ रिएक्शंस की बात मैंने की है, स्पेशली वाटर के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो उन हाफ रिएक्शंस को आप एक बार समराइज कर लीजिए। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हम लोगों ने ऑब्जर्व किए कि होते हैं। तो वाटर अगर रिडक्शन में जाता है तो उसके दो हाफ रिएक्शन है। ये E0 के वैल्यूज आपको जानने जरूरी नहीं है, सिर्फ वाटर का आप ध्यान में रखिएगा ना कि अगर इस तरह से बैलेंस किया तो -0.83 जैसा कुछ आता था, वो भी बहुत जगह यूज नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू नो द ऑर्डर की किसको प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज करवाना है। तो दीज आर द रिएक्शंस वाटर के फॉर रिडक्शन वाला पार्ट, दीज आर द रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। कॉपर के रिडक्शन का डिफरेंट, Cu2+ के रिडक्शन का ये है, Cu+ का ये है। सल्फेट के ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कहीं कहीं यूज हुआ है, वो मैंने बताया आपको। हैलाइड्स के ऑक्सीडेशन के लिए F- का कभी भी नहीं होगा, वो हम लोगों ने वाटर के पीछे ही धकेला था। वैसे भी F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो F- इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ F- का ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है प्रैक्टिकली। ये तभी होगा जब सिर्फ फ्लोराइड आयन रहे और कुछ ना रहे, तो जाके ये F2 बनाने वाला है। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इफ यू हैव यूज्ड molten fluoride, then it is going to give you F2, otherwise there is no way. If you are having aqueous solution, it is never going to give you F2. So that's one part, but other halides are going to give you halogen, and these are the reactions. इसके अलावा एक दो जो आपको नेक्स्ट क्लास में क्वांटिटेटिव वाले पार्ट में, तो पहले क्या कीजिए कि आप लोग स्क्रीन पॉज करके रिएक्शन नंबर 5 तक नोट कर सकते हैं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। आगे 3 रिएक्शन और लिखा हुआ है। सो रिएक्शन नंबर 5 तक आप पहले नोट कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी नोट कर लिया तो फिर आगे रिमेनिंग 3 रिएक्शंस की बात करते हैं। हाफ रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे, डिफरेंट केसेस में यूज होते हैं। अगले क्लास में देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस में आएंगे जब हम लोग हाफ रिएक्शंस का यूज कर रहे होंगे। ये मैंने पहले भी बताया आपको, गैल्वेनिक सेल के टाइम पे भी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्विनॉन, दिस इज कॉल्ड क्विनॉन। तो हाइड्रोक्विनॉन जब क्विनॉन में कन्वर्ट होता है, इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन, सो इसका एन फैक्टर 2, इसका भी एन फैक्टर 2 लेंगे हम लोग। ठीक है, तो और उसमें जो H+ रिलीज हो रहा है, पर मोल ऑफ H+ 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, 2 मोल्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है। ये याद रखने की जरूरत है। वैसे ही नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए जो हाफ रिएक्शन है वो ये है कि नाइट्रोबेंजीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनिलीन।
ये ऑर्गेनिक में आप लोगों को आया होगा नोमेनक्लेचर वगैरह में. सो नाइट्रोबेंजीन gets converted into aniline and in that process 6 electrons are involved. ये सब काम आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में. सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक लास्ट जो है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल मैंने दिया था सोडियम एसीटेट के एक्वा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस में. तो RCO माइनस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो पर अनायन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, एक R डॉट बन रहा है और एक CO2 बन रहा है. बट जब हम लोग यहाँ तक प्रोडक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर डबल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो एक RR और एक CO2 बनेगा. तो पर मोल ऑफ RR और पर मोल ऑफ CO2 अगर हम लोग देखेंगे तो पर मोल ऑफ RR देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. तो ये ध्यान में रखना है. तो इस तरह के जैसे CH3CO माइनस के लिए 2 मोल ऑफ CH3CO माइनस विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ C2H6, 2 मोल ऑफ CO2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो n फैक्टर ऑफ अनायन इज 1, n फैक्टर ऑफ C2H6 इज 2, n फैक्टर ऑफ CO2 इज 1. तो ये ध्यान में रखिएगा. तो ये बचे हुए 3 रिएक्शन भी आप नोट कर जाइए. देन जो फाइनल समरी है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. सो पॉज द वीडियो, नोट दिस रिएक्शंस आल्सो. अभी आप लोगों ने अगर इसको नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं और आज के पूरे लेक्चर को समराइज कर लेते हैं. आज का पूरा लेक्चर हमारा क्वालिटेटिव नेचर का था. कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं किया. हाँ वाले नंबर्स देखा, SRP SOP का वैल्यूज देखकर एक रिजल्ट निकाला, बट दैट रिजल्ट वाज आल्सो क्वालिटेटिव इन नेचर. सो उस क्वालिटेटिव रिजल्ट में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर स्पेशल केसेस ना हो तो सिंपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट दिया हुआ रहे तो प्रेफरेबली कैथोड पे इन मेटल के कैटायंस अगर प्रेजेंट है तो इनका रिडक्शन करवाना है, देन वाटर का रिडक्शन करवाना है. अगर इन मेटल के कैटायंस रहे S ब्लॉक या फिर ग्रुप 13 का मेटल Al3+ है, इनके कैटायन रहे और वाटर रहे तो वाटर इज गोइंग टू बी द विनर टू गिव यू. सो आई हैव रिटन ईज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. सो प्रेफरेबली दिस दे विल हैव रिडक्शन, देन वाटर एंड देन दिस मेटल कैटायंस. जब हम लोग एनोड की बात करते हैं जहां ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो दीज अनायंस स्पेशली हैलाइड अदर देन फ्लोराइड, फ्लोराइड इधर आ रहा है देखिए, अदर देन फ्लोराइड ऑल द हैलाइड्स एंड एसीटेट आयन will have preferential discharge at anode than water, but water will have preferential discharge than these anions sulfate, phosphate, carbonate, nitrate, sulfite, thiosulfate, fluoride etc. तो इन सब के सामने water will have preferential discharge and it will be oxidized at anode to give O2 gas. But if you are having iodide, bromide, chloride, then these halides are going to give you halogen in competition with water. बट स्पेशल केसेस जो 4 देखे वो क्या थे, Hg कैथोड यूज किया तो अब Na+ जो हार जाता था H2O से, नाउ इट विल बिकम द विनर. वैसे डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl या KCl ऐसा कुछ आ गया, देन क्लोराइड इज नॉट गोइंग टू बी विनर इन दिस टाइम वाटर विल बिकम द विनर. सिमिलरली थर्ड केस, अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 लाइक ग्रेटर देन 50% या इक्वल टू 50% ऐसा दे दिया, देन सल्फेट इज गोइंग टू बी द विनर इन कंपेरिजन टू H2O. तो कभी कभी मिक्स्ड केसेस भी देते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हो सकता है पहले 50% से ज़्यादा रहो, बाद में 50% से कम हो गया हो. तो यूल बी गेटिंग 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट. पहला सल्फेट से प्रोडक्ट बनेगा जो कि H2S2O8 बन रहा था, और अगर नीचे आ गया तो देन O2 भी बनेगा. तो इसकी भी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एंड लास्ट अगर हम लोग बात करें स्पेशल केस की, इस बार अटैक्ड इलेक्ट्रोड की बात की थी. अगर एनोड पे कोई मेटल है जिसके ऑक्सीडेशन को प्रेफरेंशियली देखा जा सकता है, तो वहाँ जैसे कॉपर की बात की हम लोगों ने, CuSO4 एक्वस था, उसका अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किया यूजिंग Cu इलेक्ट्रोड, देन एनोड वाला Cu वाज ऑक्सीडाइज्ड इन कंपटीशन विद वाटर टू फॉर्म मेटल आयन. एंड उसका एप्लीकेशन भी देखा हम लोगों ने. इसका एप्लीकेशन था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में. So this was today's lecture based on electrolysis. This was the first lecture. Next class will be based on the quantitative analysis of electrolysis, and that will be the last lecture on electrolysis. Then we'll move to conductance. So that's all for today's lecture. दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर हाँ तो YouTube पे लाइक का बटन दबाएं, और हाँ अपने डाउट्स एंड फीडबैक्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें. फॉलो द प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर द रिमेनिंग वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर. केमिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको इनकी जरूरत हो सकती है. थैंक यू एंड टेक केयर.